And we start standard 8 science chapter number measurement and effect of heat. प्रीवियस चैप्टर में हमने कैलोरीमीटर और थर्मामीटर पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीट. तो फर्स्ट हम इफेक्ट ऑफ हीट में ले रहे हैं एक्सपेंशन. किसी भी सब्सटेंस को जब हीट दी जाती है उसको टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस सब्सटेंस का लेंथ इंक्रीज होता है. ओके सॉलिड, लिक्विड और तीनों गैसेस में, तीनों में जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है वो एक्सपैंड होते हैं. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. लीनियर एक्सपेंशन. द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर और अ रॉड ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड का उस टाइप का है जैसे ही हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी वायर या रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है. When we increase the temperature of a rod of length L1 from T1 to T2, its length become L2. लेंथ है रॉड की जो L1 है, टेम्परेचर बढ़ाने पे T1 से T2 कर रहे हैं तो उसकी लेंथ हो जाती है L2. The change in length is proportional to the original length and the increase in temperature. Delta T equal T2 minus T1. So we can write the change in length as follows. Change in a length alpha, original length into change in temperature. L2 minus L1 alpha L1 into delta T. L2 minus L1 equal alpha lambda into L1 into delta T. L2 equal L1 1 plus lambda delta T. Here lambda is the constant of proportionally and it is called the coefficient of a linear expansion. क्या कहलाता है ये लैम्डा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. द एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. जो कोफिशिएंट एक्सपेंशन का वो डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट है. From the above formula we can see that we take two rods with different substance but having the same length and increase their temperature same amount, but the rod of the substance having higher expansion, जिसका higher expansion coefficient होगा वो more expand होगा, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज, वो लार्जर होगी. फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे लैम्डा इक्वल L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा T. Thus, the expansion coefficient is the change in length of a rod of unit length when its temperature is increased by 1 degree. जैसे 1 degree expand होता है टेम्परेचर तो length expansion coefficient भी change होता है. We can see that unit of expansion coefficient of is the inverse of the unit of temperature 1 upon degree Celsius. The expansion coefficient of the same substance are given the following table. देखिए सॉलिड का कॉपर का है 17, एल्यूमिनियम 23.1, आयरन 11.5, सिल्वर 18, अल्कोहल 1.0, वाटर 0.2, मर्क्यूरी 0.2, क्लोरोफॉर्म 1.3, हाइड्रोजन 3.66, हीलियम 3.66, नाइट्रोजन 3.67 एंड सल्फर डाइऑक्साइड 3.90. ये फिक्स वैल्यू है एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की. ओके एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे. What will be the increase in the length of a steel rod of length 0.5 meter है when its temperature is increased by 60 degrees Celsius. The coefficient of a linear expansion of steel is 0.000013 upon degree Celsius. तो इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड क्या है 0.5 मीटर, चेंज इन टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल. यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी. तो ये आ जाएगा, आप वैल्यू पुट करेंगे 0.0013 इंटू 0.5 इंटू 60, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 60 इंटू 5 इज कम 3.0 एंड 0.00013 इंटू 3 करेंगे तो 0.00039 मीटर. तो इंक्रीज कितनी हुई लेंथ में 0.00039.
Areal expansion of solid. Similar to linear expansion, the area of a sheet of solid material also increase on heating. This is called the areal expansion of solid. इस तरह से ये फॉर्मूला है हमारा. एरिया भी इंक्रीज होगा तो A2 इक्वल A1 ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा डेल्टा टी. सिग्मा इज द कोफिशिएंट ऑफ aerial expansion of solid, and A1 and A2 are initial and final area, and delta T is a change in temperature. Same as वॉल्यूमेट्रिक में भी इसी तरह होगा. एरिया इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है सॉलिड सब्सटेंस में. Similar to sheet, a three-dimensional piece of solid expand all side when heated and its volume also increase. तो वॉल्यूम का क्या है? V2 इक्वल V1 1 plus beta delta T. Here delta T is temperature and V1 and V2 are our initial and final volume. Beta is the volumetric expansion coefficient of the solid. Have you seen rail? आपने रेल देखी है? They are not continuous. रेल के जो ये रहते हैं वो कंटिन्यूस नहीं रहता. स्मॉल गैप इज कैप्ड बिटवीन दैम एट रेगुलर इंटरवल. इनके बीच में इस तरह से गैप रखा जाता है. दिस इज अ कैप टू अकोमोडेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द रेल विद चेंज इन टेम्परेचर. ये इसलिए रखा जाता है कि जब टेम्परेचर के कारण अगर आयरन की ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो तो ये एडजस्ट हो जाए. वैन अगर वो यहाँ पे गैप नहीं रखेंगे तो ये या फिर साइड से चली जाएगी, जिसके कारण जब भी यहाँ पे ट्रेन जाएगी तो वो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है. सिमिलर टू रेल, द लेंथ ऑफ ब्रिज कैन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द एक्सपेंशन इन समर. ब्रिज भी इंक्रीज होते हैं. द लेंथ ऑफ द 18 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेट बेल्ट ब्रिज इन डेनमार्क जो कि इंक्रीज हो जाता है 4.7 मीटर इन समर में. और therefore provision is made in the construction of the bridge to accommodate this expansion. अब लिक्विड का एक्सपेंशन है. A liquid does not have a definite shape but it is a definite volume. So we can define a volumetric expansion coefficient for a liquid. V2 equal V1 1 plus beta delta temperature. Delta T is the change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volume. The liquid beta is the volumetric expansion coefficient of liquid. Okay. Which use of the expansion of a liquid in daily life do you know? क्या यूज़ है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का डेली लाइफ में? तो थर्मामीटर बेस्ट एग्जांपल है. थर्मामीटर को आप जैसे ही हीट में रहते हो और आपका हीट अगर बढ़ा हुआ एवरेज से ज़्यादा है तो अपने आप एक्सपैंड होता है उसके अंदर का जो लिक्विड मर्क्यूरी एंड अल्कोहल रहता है उसके अंदर. हमने प्रीवियस चैप्टर में ही प्रीवियस क्लास में ही हमने डिस्कस किया. द इफेक्ट इफ द हीट ऑन वाटर इज अ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिक्विड. दिस इज अ कॉल्ड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन जो हीट और वाटर का इफेक्ट है डिफरेंट होता है कई बार, क्योंकि जो वाटर है वो एनोमलस बिहेवियर बताता है. ओके. अब हम पढ़े हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. अ गैस डज नॉट इवन हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस एक्सपैंड ऑन अ हीटिंग बट इफ द गैस इज केप्ट इन क्लोज बॉक्स इट्स वॉल्यूम कैन नॉट बी इंक्रीज. वो फिक्स बॉक्स में रहता है तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बट उनका प्रेशर इंक्रीज होता है. ये हम इसमें देख रहे हैं फिगर में. ये देखिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. जैसे उनको गर्म कर रहे हैं तो ये जो पिस्टन था वो ऊपर आ गया है. ये इनका प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो गया. फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम. एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ हीट एंड गैस केप्ट इन अ क्लोज बॉटल. इफ़ द बॉटल इज़ नॉट क्लोज, अगर हम बॉटल क्लोज नहीं करेंगे तो जो मूवेबल पिस्टन है वो अटैच टू इट्स ओपन एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ. तो जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है वो मेज़र किया जाएगा कीपिंग इट प्रेशर इज कांस्टेंट. जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज called the constant coefficient pressure and as a given V2 equal V1 1 plus beta delta T.
Here delta T is a change in temperature, V1 and V2 is initial volume, gas at constant pressure, B is the constant pressure expansion coefficient of gas. Here is complete this chapter. आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपको थर्मामीटर कैलोरीमीटर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.